Hello student, welcome to learnclassic.education. So today we are going to read about hydrocephalus. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोसेफेलस. सो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज हाइड्रोसेफेलस? इंट्रोडक्शन में हाइड्रोसेफेलस इज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एक्सेसिव accumulation of cerebrospinal fluid in the brain. Okay, so it is a neurological disorder caused by excessive accumulation of cerebrospinal fluid, that is CSF, in the brain. That is CSF in the brain. Increased CSF raises intracranial pressure, that is ICP. It can occur in infants, children and adults. So it can occur in all these three: infants, children and adults. So early diagnosis and treatment help prevent the permanent brain damage. So if it is detected early, it help in treated properly, so it help in preventing permanent brain damage. Which if it is not treated early, so it can lead to permanent brain damage. Now coming to the definition. So what is the definition? Hydrocephalus is a condition characterized by an abnormal accumulation of cerebrospinal fluid within the ventricles of the brain, leading to increased intracranial pressure and ventricular enlargement. Okay, so this is the definition of hydrocephalus. You need to remember this definition. Now coming to the causes and risk factors. So what are the causes of hydrocephalus? That is, congenital abnormalities is one cause, brain tumor is one cause, meningitis is one cause, head injury is one cause, intracranial hemorrhage and stroke. ये सब के वजह से हाइड्रोसेफेलस हो सकता है. So these are the causes of hydrocephalus. And रिस्क फैक्टर क्या क्या है जिसके वजह से, मतलब बहुत रिस्क फैक्टर मतलब वो सब चीज़ है जो एक फैक्टर मतलब जो है बॉडी में, उसके वजह से चांसेस है हाइड्रोसेफेलस होने का. सो प्रीमेच्योर बर्थ मीन्स टर्म के आगे बर्थ हो जाने से, प्रीमेच्योर बर्थ या फिर वेट लॉस, लो बर्थ वेट बेबी, ये सब के वजह से हाइड्रोसेफेलस हो सकता है. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, वो एक रीज़न है. ब्रेन इन्फेक्शन एक रीजन है. फैमिली हिस्ट्री ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर. सो ये सब रीजन है हाइड्रोसेफेलस होने का. कमिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी, हाइड्रोसेफेलस कैसे होता है? सो एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन और इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द CSF. जब ठीक से जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है CSF का और ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसके वजह से देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल CSF फ्लो का ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, विच इज कॉजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द वेंट्रिकल. उसके वजह से वेंट्रिकल में CSF एक्यूमुलेट हो जाता है. एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ एनलार्जमेंट. ध्यान से देखो, एनलार्जमेंट ऑफ द वेंट्रिकल्स. सो एक्यूमुलेशन ऑफ द CSF in the ventricles which causes the enlargement, and that is causing the increased intracranial pressure, that is ICP. So compression of brain tissues causing neurological defect. Compression of the brain tissues is causing the neurological defect. So क्या होता है, पहले either बहुत ज़्यादा production और absorption नहीं होता है CSF का, उसके वजह से there is a obstruction of the normal CSF flow. CSF flow का ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है. एज अ रिजल्ट वो एक्यूमुलेट हो जाता है वेंट्रिकल में. वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट हो जाने से क्या होगा, उसका साइज बढ़ जाएगा. सो एनलार्जमेंट ऑफ द वेंट्रिकल्स हैपन्स एंड उसके वजह से देयर इज अ इंक्रीज्ड इंटरक्रैनियल प्रेशर ICP, and that is the reason which is causing compression of brain tissue causing neurological defect. So ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइड्रोसेफेलस. कैसे होता है? Now we will come to the clinical manifestation, that is signs and symptoms. Enlarged head injury, enlarged head circumference का size बड़ा हो जाएगा. Then bulging fontanelles का bulge out हो जाएगा. Poor feeding, vomiting, irritability, sun setting eyes. So ये सब हो जाएगा infants में. So ये सब signs and symptoms दिखेगा infants में. Children's and एडल्ट्स में क्या दिखेगा? वो हेडेक दिखेगा, नोजिया वॉमिटिंग जो कॉमन है, ब्लड विजन, डिफिकल्टी वॉकिंग में डिफिकल्टी होगा, पुअर बैलेंस ठीक से नहीं होगा, मेमोरी प्रॉब्लम होगा, सीजर्स अटैक्स भी आ सकता है. सो ये सब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. नाउ विल कम टू द डायग्नोसिस. कैसे हम लोग डायग्नाइज कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट से? एक है मेडिकल हिस्ट्री, वो तो बोला ही गया है कंजेनिटल डिजीज है तो मेडिकल हिस्ट्री तो लेना ही है. मेडिकल हिस्ट्री एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है.
हेड सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं हेड सर्कमफ्रेंस का कितना इंक्रीज हुआ है। सीटी स्कैन देख सकते हैं, तो एमआरआई ब्रेन से देख सकते हैं, क्रैनियल अल्ट्रासाउंड एंड फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर असेसमेंट। सो ये सब है कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा को हाइड्रोसेफेलस है कि नहीं हुआ। फिर हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट है एक जो डायूरेटिक्स दे सकते हैं सिलेक्टेड केसेस में। मैनेजमेंट ऑफ द अंडरलाइनिंग कॉज क्या है उसे मैनेज करना है। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल दैट इज वीपी शंट। सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग वीपी शंट से कर सकते हैं। एंड एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिक्यूलोस्टोमी, ये सब है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसका डिटेल्स तुम चेक कर सकते हो कैसे किया जा सकता है, बट ये दो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट है। नाउ कमिंग टू द नर्सिंग मैनेजमेंट, हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। वी हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू मॉनिटर द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड ग्लासगो कोमा स्केल, एक्सेस फॉर साइंस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। वी हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइंस जो हमेशा करते हैं और करते रहना चाहिए। मेंटेन शंट फंक्शन एंड ऑब्जर्व फॉर इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन है या फिर शंट फंक्शन वो मेंटेन करना है। एंड देन पोजीशन द पेशेंट एज प्रिस्क्राइब, डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करेंगे उस प्रिस्क्रिप्शन से हम लोग को पेशेंट का पोजीशन मेंटेन करना है। वी हैव टू एडुकेट द पेशेंट एंड द फैमिली अबाउट द शंट केयर। शंट केयर क्या है उसके बारे में तुम लोग थोड़ा देख सकते हो। उसके थ्रू हम लोग को एडुकेशन करना है पेशेंट को और पेशेंट फैमिली को। एंड वी हैव टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन। ओके, सो ये सब है नर्सिंग मैनेजमेंट। कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ रहा है, इंक्रीज्ड इंट्राकार्नियल प्रेशर, ये है एक फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। अगर हम लोग सही टाइम पर ठीक से ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किए तो इट विल कॉज इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ब्रेन डैमेज, सीजर्स, डेवलपमेंटल डिले, चिल्ड्रन में डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, वीपी शंट इन्फेक्शंस और ब्लॉकेज हो सकता है, विजन प्रॉब्लम हो सकता है, कोमा इन सीवियर केसेस, अगर एकदम ही ठीक से नहीं देखे ये सबको तो कोमा भी हो सकता है। सो प्रिवेंशन, adequate antenatal care is very important. Folic acid supplementation during pregnancy, so folic acid supplementation भी बहुत important है pregnancy में। prompt ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस एंड हेड इंजरीज, तो पहले डिटेक्ट करना है फिर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना है मेनिंजाइटिस एंड हेड इंजरीज में। देन रेगुलर फॉलो अप फॉर शंट मीन्स आफ्टर शंट सर्जरी, अब शंट सर्जरी के बाद रेगुलर फॉलो अप चाहिए। सो ये सब है प्रिवेंशन। देन कंक्लूजन क्या है, हम लोग जो पढ़े हैं हाइड्रोसेफेलस इज अ सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस दैट requires early diagnosis and timely treatment. So it is a serious neurological condition, okay, which requires early diagnosis and timely treatment. Surgical interventions such as BP shunt and ETV are effective. वो जो दो सर्जिकल मैनेजमेंट बोला गया था, VP shunt and ETV are effective in many patients and nurses play a key role in assessment, post-operative care, patient education and prevention of complication. So ये सब है, ये सब important parts है हाइड्रोसेफेलस में, ठीक है। ओके, थैंक यू।